Hello student, myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. Dear student, today we have to talk about the chapter number 2nd, and the chapter number 2nd name is structure of atom. First of all, I want to say you something about this chapter. This chapter is very important for you because it will give more ideas about the atoms and their internal structure. So I think you will also uh, enjoy after study this chapter. So we continue, and let's first I will talk about for the need, why we need for the study of this chapter, that is the chapter structure of atom. Clear? You know very well, every matter every matter have very fine smallest particle which is known as atom, and this atom is indivisible or uncut or uncut. As I have already explained about the matter and the smallest part of the matter which is considered or known as atom. So the question is that from where we know that the smallest part of the matter is the atom. So there is a theory which was given by John Dalton. John Dalton in 1803 proposed a theory which is known as Dalton's law of atomic theory. Dalton's law of atomic theory. That means the concept of atom is first of all introduced by a well-known chemist John Dalton in 1803. He explained the some special point related to the matter as well as the atom in his theory which is known as Dalton's atomic theory. Clear? So the concept of atom comes from the Dalton's atomic theory, but here the John Dalton was not able to explain the more things or the internal part of the atoms. Clear? So we can say here that the John Dalton's concept is a very limits, and further the modern chemist or the modern discovery says about the some other things, that is they explain the internal structure. Modern chemists explain the internal structure of the atom. Here, and the name of the modern chemist who explain the internal structure of the atom is, J.J. Thomson, James Chadwick, Goldstein, Julius Plucker, Rutherford, so on. These all names are related to the modern chemist or modern scientist. So they give a very special idea about the internal part of the atom. And after all, considering the theories of the theories of the Chadwick, Rutherford, and Goldstein, we reach another point, that is the fundamental particles or the permanent particle which is known as electron, proton, and neutron. Clear? So here we talk about for the internal structure of the atom. Clear? So you know very well that matter is consist of atom, and it was suggested by John Dalton, but later or modern concept says that matter is consist of molecule which can exist, and molecule is consist of atom, and atom is consist of the three fundamental particles, and that is known as electron, proton, and
neutron. Clear? But this concept is limited, or this is the concept given in the Dalton's theory, that matter is a atom, but modern concept is that matter is consist of the molecules, and molecules is consist of atom, and atom is consist of electron, proton and neutron. So here we can say clearly that the internal structure of atom contain the some particles, and that particles is the fundamental particles. So the electron, proton and neutron are considered as fundamental particles, or these fundamental particles are also known as permanent particles, as I explained in first video, that is in chapter first, that there are some atomic particles are present, and these some atomic particles are of two types, permanent and temporary. And permanent particles are known as fundamental particles, and these fundamental particles will be electron, proton and neutron. Clear? Now here we talk about for who explain or who says that the atom also contains the electron, proton and neutron. Next thing is that we have to also discuss here that what will be the position for the electron, proton and neutron inside the atom. So we need to study a new heading or new things, which is the name given here, structure of atom. Clear? So I just explained here what is the need for the study of the structure of atom. So here it is clear that atom is consist of electron, proton and neutron, and to know the actual positions of electron, proton and neutron inside the atom, we need another topic, and that is the structure of atom or atomic structure. Clear? So we will discuss about that all the fundamental particles and how the fundamental particles have been discovered. Clear? Okay, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. आपको मैंने बताया कि मैटर को हम ब्रेक करते हैं तो एटम बनता है, ये बताया था डाल्टन ने. डाल्टन ने अपने कॉन्सेप्ट में बताया, और उसके बाद जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, डाल्टन के कॉन्सेप्ट के बाद जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें बताया कि मैटर को जब हम ब्रेक करते हैं तो पहले हमें मॉलिक्यूल मिलता है, मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो एटम मिलता है, और एटम को ब्रेक करने पर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है या जो परमानेंट पार्टिकल्स है. अब क्वेश्चन ये है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एटम के अंदर किस तरह से इनका पोजीशन है. यानी एटम के अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है, न्यूट्रॉन कहाँ पर है, that means we are talking about for the positions of these fundamental particles inside the atom. यानी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पर होंगे. तो इसको जानने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, और स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है. क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि चलिए ठीक है कि एटम में इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आपको सुनना है कि किसने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, किसने ये बताया कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, और किसने ये बताया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है. आखिर किसी ने, साइंटिस्ट ने ही बताया होगा कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है. यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, और ये जो डिस्कवरी है वो एक बार हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे, एक बार हम प्रोटॉन के बारे में देखेंगे, और एक बार हम न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे.
क्लियर? यानी वन बाय वन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स तो मैंने बताया 3 हैं, एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा प्रोटॉन है और एक हमारा न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहीं ना कहीं से एक टॉपिक से इसका रिलेशन है और वो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। यानी यहां पर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पढ़ना ही है, लेकिन ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंडर में आता है? ये आता है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां से हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी पता चलेगा जब हमें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में नॉलेज होगा। अब हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पहले कंसीडर करते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि सबसे पहले जो चार्ज है, चार्ज कहां से आया? जैसे चार्ज का डेवलप, यानी पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, कैसे डेवलप हुआ? जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर हम लेकर रब करते हैं, उस पर रगड़ते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे एज एग्जांपल मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इबोनाइट रॉड को अगर हम जो एनिमल फर है या सिल्क है उसके ऊपर जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो होता क्या है कि जो इबोनाइट का रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से? तो नेगेटिव चार्ज आया जो सिल्क है वहां से, क्योंकि सिल्क जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड का मतलब आराम से वो लूज हो जा रहा है, यानी बहुत ढीला ढाला है, टाइटली पैक नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो सिल्क पर जब हम इबोनाइट रॉड से हम रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो सिल्क में से इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है रॉड के ऊपर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर आ जाएगा उस रॉड पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? सिल्क ने। तो सिल्क के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इबोनाइट रॉड के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वहां पर डेवलप हो गया। तो ये हो गया डेवलपिंग ऑफ चार्जेस। अब ये चार्ज जो है, जैसे अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो मैटर के 3 मेन फिजिकल स्टेट होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसमें कैसे करंट पास करते हैं? तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में तो बहुत इजीली करंट पास होता है, ये आप सभी लोग जानते हो। चाहे कोई भी कोई भी मेटालिक रॉड ले लीजिए, मेटालिक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें आप करंट फ्लो कराइए, करंट आराम से पास होगा, ठीक है ना। अब जो जितने भी कंडक्टर हैं, कंडक्टर में जो सॉलिड जो कंडक्टर का काम करते हो उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें करंट पास हो जाता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी पास होता है, और ये गैस में करें तो गैस में पास होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा एक सस्पेंस वाला क्वेश्चन है, और यहीं से शुरुआत होता है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का। यानी कहने का मतलब सॉलिड में करंट पास हो रहा है, कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। लिक्विड में भी पास होता है। अच्छा, लिक्विड में
सबसे पहले करंट पास करके किसने देखा? तो उनका नाम था माइकल फैराडे। सबसे पहले लिक्विड के अंदर करंट को पास करके 1803 में एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। आप नाम सुने होंगे इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे ने ही दिया है, और ये 1830 में इन्होंने सबसे पहले लिक्विड के अंदर करंट को पास करके दिखाया। और जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसी के बाद से अलग अलग साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इलेक्ट्रिक करंट और मैटर के जो फिजिकल स्टेट है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें एक रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन को वन बाय वन लिक्विड में तो ये पास करके चले गए। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया भाई हम लिक्विड में किसी सॉल्यूशन में अगर हम पास करते हैं तो अलग अलग वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की घटना होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस नाम देते हैं। कैथोड पे कोई अलग गैस बनता है, एनोड पे कुछ और बनता है। तो ये सब हम इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं, जो माइकल फैराडे ने बताया। लेकिन गैस में करंट पास होगा कि नहीं होगा, इसके लिए बात हो रही थी, और इसको एक्सप्लेन करने का काम अगर किसी ने किया तो उनका नाम था जूलियस प्लकर। ठीक है ना? जूलियस प्लकर ने 1859 में, हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पर आप पहुंच गए हैं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ने के बाद ही आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज 1859 की ये घटना है। 1859 में जूलियस प्लकर नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले गैस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करने का काम किया। दैट मीन्स जूलियस प्लकर passes the electric current through the gases, and इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया, और उस सेटअप के थ्रू उन्होंने गैस के अंदर करंट पास करने की कोशिश की। और वो सेटअप क्या था, मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेटअप ये था कि उन्होंने एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये एक हार्ड ग्लास ट्यूब है, क्लियर? और यहाँ पर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाया, एक को हम कहते हैं कैथोड और एक को कहते हैं हम एनोड, जो आप पहले से ही जानते हो, जो फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस में बताया भी था। कैथोड जो होता है ये निगेटिव टर्मिनल होता है, आप पहले से जानते हो, ये कैथोड है, कैथोड। और ये हमारा है एनोड। एनोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड और एनोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को ले जाकर एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया हाई वोल्टेज सोर्स से। यहाँ पर हाई वोल्टेज सोर्स से ले जाकर इसको कनेक्ट कर दिया गया, और इसमें क्या फील किया गया था, गैस। और ये जो नीचे है, आप नीचे ये देख रहे हो जो जगह, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया गया था, ताकि हम प्रेशर को यहाँ से मेंटेन कर सकें। क्लियर है ना? यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जूलियस प्लकर ने लिया। दो उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड और एनोड, और इस हार्ड ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने इन दोनों को एक वायर से ले जाके हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया और करंट को पास करना शुरू किया। पहले उन्होंने कम वोल्टेज का करंट पास किया। जब इसमें करंट पास किया उन्होंने कम वोल्टेज का, तो देखा कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर उनको लगा कि हो सकता है वोल्टेज कम हो, थोड़ा और बढ़ा के वोल्टेज उन्होंने पास करना शुरू किया। यानी इस तरह वोल्टेज बढ़ाते 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 वो अप टू 10,000 वोल्टेज बढ़ा चुके थे। 10,000 वोल्ट तक का इसमें करंट पास कर चुके थे, लेकिन इसके अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। अब उनका दिमाग घूम गया कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं
लेकिन करंट पास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ और रीजन है। और वो रीजन उन्होंने क्या देखा, ये जो वैक्यूम पंप लगाया था इन्होंने, ये वैक्यूम पंप था, और इस वैक्यूम पंप पर से प्रेशर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये हाई वोल्टेज करंट जो पास किया था वो 1 एटीएम प्रेशर पे किया था, यानी उस समय इस गैस का प्रेशर 1 एटीएम था। तो जब इतना वोल्टेज उन्होंने पास कर दिया तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं से हमारे सेटअप में कोई कमी है। तो उन्होंने कैथोड एनोड के प्लेट को चेंज करके देखा, तब भी नहीं हुआ। तब उनका दिमाग जो था वो चला गया कहाँ पर, वैक्यूम पंप के पास। उन्होंने वैक्यूम पंप से थोड़ा सा प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। मतलब प्रेशर रिड्यूस करने का मतलब जैसे 1 एटीएम था तो उसको 0.1 एटीएम कर दिया, और जैसे ही 0.1 एटीएम प्रेशर जैसे ही रिड्यूस हुआ, इसके अंदर रिएक्शन होने शुरू हो गए। और रिएक्शन होना जब शुरू हो गया तो उनको पता चल गया कि दिक्कत कहाँ से है, और धीरे 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 उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू किया, और अप टू इतना प्रेशर 0.0001 एटीएम तक इन्होंने प्रेशर रिड्यूस कर दिया। और लास्ट में देखा क्या कि कैथोड के साइड से कोई रेज निकलती है, और ये रेज जो है ये एनोड के पीछे वाले वॉल पर, ये पीछे वाले साइड यहाँ पर एक कलर प्रोड्यूस कर रही थी। ये पीछे वाला जो ये एनोड के पीछे ये जो वॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हरे रंग का, ग्रीन कलर का एक कलर प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये ग्रीन कलर का कलर बनने का मतलब यही था कि ये कहाँ से निकल रहा है, ये कैथोड से निकल रहा है, और कैथोड से निकलने के वजह से ही इसके पीछे इस तरह का ये डार्क लाइन या कलर बन रहा है। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड से जो रेज निकल रही है वो कौन सी रेज होगी, कैथोड रेज होगी। तो ओवरऑल ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक नए चीज की तरफ, एक नई चीज की डिस्कवरी हो गई, और वो डिस्कवरी थी कैथोड रेज की। यानी फाइनली ये बताया गया कि इस एक्सपेरिमेंट में कैथोड के साइड से एक रेज निकलती है जो एनोड के पीछे वाले वॉल पर एक कलर प्रोड्यूस कर रही है, और ये कैथोड से निकली है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया क्या, कैथोड रेज। अब आगे हम बात करेंगे कि कैथोड रेज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और बहुत अलग अलग पॉइंट्स के बारे में। क्लियर?